Hi everyone, so there is a very important update related to the mains exam of CPDTM. That is the exam which we were expecting, and it is on 25th of January. Yes, so mains of Controller General Patent Design and Trademarking exam, which was for examiner patent and design, will be held on 25th January 2024. अब यहाँ पे डेट थोड़ी सी गलत दी है एनटीए ने, 25 जनवरी 2023 लिखा हुआ है, लेकिन वो आपका 2024 है, थर्सडे को। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में दो पेपर होंगे, मेंस पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, आपको ऑलरेडी सिलेबस पता था उसका, और पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव 300 मार्क्स का है, जो टेक्निकल या साइंटिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, लाइक इट में बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट में बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी बायोटेक्नोलॉजी, वो पेपर 2 है आपका। तो 25 को मॉर्निंग एंड इवनिंग में होगा, दो शिफ्ट में पेपर होगा, और ये 14 डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो बाद में डेट अनाउंस की जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो 21 दिसंबर को देयर वर एग्जाम एंड 89,000 students, I mean candidates were there across 260 centers as per them. So result जो है वो प्रिलिमिनरी का बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, और मेरे को लगता है नेक्स्ट 3 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको 20 दिन मिलेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। सो 20 days you are going to get for preparation of this particular exam of mains CPDTM. Friends, you remember, I need to mention here something, like you remember we told you end of January you are going to have your mains. If you see on our channel that you will find the video also where we have mentioned end week of January. So as expected, and I'm also telling you, like very soon interview will also be conducted, and March, April, May they will provide you jobs, and very soon they are going to declare another CPDTM exam also. Now every mark is important, and before we go forward I tell you, like what is the strategy for next 20 days. Now subjective paper is of 300 marks, and that 300 marks are very important. Objective is 100 marks and subjective is 300 marks. Now to score really good in 300 marks, your writing skill should be really good. Writing skill means where you write at least your 10 answers and show it to the mentors of Europedia. Please do that, because if you write it and show it to the mentors of Europedia, your preparation will be, your writing skill will be, the problems of your writing skills at least can be removed. So your writing skill mein whatever problem you will be having, like when you write something, sometimes you make mistake in your writing, you don't focus on the headings, you don't focus on the most important points, you don't write the equation, you don't make the diagram. So those mistakes should be removed. So next 20 days what you should do, you should divide this entire preparation into 2 parts. One part is 100 marks, which is a very scoring but objective paper. So 100 marks should be kept separately, and in 100 marks you have 20 marks from aptitude, 20 marks from general knowledge current affair, 20 marks from mathematics, 20 marks from English, 20 marks from intellectual property rights. So this 100 marks are divided into 5 main categories. So you should keep that 100 marks ke liye 3-4 hours every day, and 7 hours you should keep for your mains paper, that is paper 2. 300 marks is for that. Now in this 300 marks, I strongly believe that the way you attempt paper will create 30 to 40 marks difference. Like every question of 10 marks or 12 marks, it will have difference of 2-3 marks on the basis of your writing skill. Writing skill एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नॉलेज या कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना तुम्हें कंटेंट या नॉलेज होना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो तुम्हारा राइटिंग स्किल है, जो आपका लिखने का तरीका है, उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स का हैंडराइटिंग पैथेटिक होता है, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता। तो अगर तुमने आंसर सही भी लिखा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो नंबर कट जाएंगे। अगर तुम हेडिंग नहीं डाल रहे हो, अगर तुम पैराग्राफ ढंग से नहीं कर रहे हो, अगर तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो, इक्वेशन नहीं लिख रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस पेपर के लिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं। और आप अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके मार्क्स में डिफरेंस आएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं ये, और इसमें आपको अगर जॉब्स को लेना है तो आपको कोई भी चांस नहीं लेना है, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। यूरोपीडिया ने बहुत अच्छा कंसाइज मॉड्यूल इसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है,
आप जानते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया आर बेसिकली ट्रैकिंग दिस एग्जाम एंड आपका बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा, आपका बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस हो जाएगा अगर आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले 20 डेज के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए 3 घंटे और सब्जेक्टिव पेपर के लिए 7 आवर्स मिनिमम रखने हैं एंड एवरी डे एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिख के मेंटर्स को दिखाना चाहिए, जो मेरे को लगता है। और मेंटर्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मेंटर्स आपके साथ आपका राइटिंग स्किल चेक करेंगे। क्वेश्चंस क्या क्या हैं ये भी आपको भेजे जा चुके हैं, मेंटर्स ने आपको भेजे हुए हैं, अगर नहीं भेजे तो आप उनसे ले लो। हर सब्जेक्ट के 10-20 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और हर क्वेश्चन का आंसर लिखो और लिखने के बाद मेंटर्स को दिखाओ, उसको मेंटर से टेस्टिंग करवाओ, चेक कराओ कि आपका राइटिंग स्किल ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप उसका रेफरेंस आंसर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा आपको आंसर इस तरीके से लिखना था। ये राइटिंग स्किल का तरीका है उसका। मेरे को लगता है आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। सो नाउ द अपडेट वाज 25 जनवरी इज गोइंग टू बी योर मेंस। नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए प्रीलिमिनरी का और उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो मेंशन यहाँ पे ये किया हुआ है कि आपका जो एग्जाम था प्रीलिमिनरी का वो 89,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, लेकिन लिखा नहीं है इन बच्चों ने। 89,000 ने फॉर्म भरा था, लिखा मेरे को लगता है 40-50 हज़ार बच्चों ने लिखा होगा इसको और उसमें से 11,000 बच्चों को कॉल आने वाला है प्रीलिमिनरी का, मेंस का, और उसमें से फिर 2,500 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल आएगा और 550 वैकेंसीज फुलफिल होंगी जो अप्रैल तक आपको मिल जाएंगी। तो आप तैयारी अपनी ऑन रखो फ्रेंड्स। और एक वीडियो मेरा है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, उसमें किस चीज़ पे फोकस करना है, उस वीडियो को सुन लेना और अपना राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दो, आज से ही लिखना स्टार्ट कर दो सो दैट आप अच्छा स्कोर उसमें कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड नाउ टू मेंटर यू और जल्दी से अपना स्टार्ट करो। जिन्होंने मॉड्यूल नहीं लिया है अभी तक यूरोपीडिया का वो ले सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।